وہ اس کے پیچھے بالکل خاموشی سے اتر رہا تھا۔ اس کا دماغ اپنے اور چیف حنیفہ کے درمیان ہوئی گفتگو کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ سیلینا کی ٹک ٹک کرتی ہیلز رک چکی ہیں۔ وہ زینوں پر غائب دماغی کے ساتھ اتر رہا تھا کہ یکدم گڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ سیلینا سامنے موجود زینوں کے کشادہ حصے میں کھڑی ہاتھ باندھے اسے کھول رہی تھی۔ اس نے کنکار کر آس پاس دیکھا۔ تم نے کل کہا تھا کہ تم اسٹاکر نہیں ہو۔ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھورتی ہوئی زینے چڑھ رہی تھی، پھر اس سے ایک زینے نیچے رک گئی۔ میں اپنے راستے جا رہا تھا۔ پیچھے آنے والا ہمیشہ پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں اب تک چھوٹی تھی، رنگت جو لکھاری کے انکار پر زرد پڑ رہی تھی اب کے کچھ بحال محسوس ہو رہی تھی۔ کہیں تم مجھے تنہا پا کر مجھ سے فائدہ تو نہیں اٹھانے والے تھے؟ ایسا سوچنا بھی مت، میں نے کنگ فو میں کراٹے کر رکھے ہیں۔ گردن اٹھا کر کہا تو یاسر کے آبرو تعجب سے اوپر کو اٹھے۔ اس نے ایسا جملہ آج تک نہیں سنا تھا۔ کنگ فو میں کراٹے؟ نہ صرف یہ بلکہ ہتھیار بھی موجود ہے میرے پاس۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے سیاہ پرس سے سیب کاٹنے والی چھری نکال کر یاسر پر تانی تھی۔ یہ ہتھیار ہے، اسے کھلونا نہیں کہتے؟ کیا کمال سنجیدگی سے پوچھا تھا اس نے۔ اس کا استعمال اسے خطرناک بناتا ہے۔ آپ کو اس کا استعمال آتا ہے؟ کیا تم پر تجربہ کر کے ثابت کروں؟ آبرو اٹھا کر پوچھا۔ وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ اگر آپ راستہ دیں گی تو میں اپنی مطلوبہ جگہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ لفٹ چھوڑ کر تم سیڑھیوں سے کیوں نیچے جا رہے ہو؟ ایک مضبوط جواز دو۔ چند پل ٹھہر کر یاسر نے اپنے بال کھچائے تھے۔ میں تھوڑا ویٹ لوز کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کے جواب پر چند پل کے لیے لاجواب ہوئی تھی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ میں تمہیں اٹھا کر پھینک سکتی ہوں ان سیڑھیوں سے نیچے، چبا کر کہا تو یاسر نے ایک ناقصانہ سی نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سیاہ مخملی میکسی اس کے پیروں تک تھی لیکن اس کا اوپری حصہ کھلا تھا۔ اس کھلے حصے سے اس کی کالر بونز واضح طور پر ابھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جسم اس قدر نازک تھا کہ دیکھنے پر بھی اس کی ہڈیاں نظر آیا کرتی تھی۔ یہ اس کا نہیں، اس کے پروفیشن کا قصور تھا۔ ایکٹریس اور ان کی ایکسٹریم ڈائٹس۔ آپ شیور ہیں کہ آپ مجھے اٹھا کر پھینک سکتی ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کے ایسے پوچھنے پر وہ ذرا گڑبڑائی تھی، پھر پیچھے ہوئی، ہاتھ باندھ کر گردن تیچی کیے اسے دیکھا۔ جا سکتے ہو تم۔ راستہ دے کر احسان جتایا گیا تو یاسر گہرا سانس بھر کر سر ہلاتا نیچے اتر گیا، پھر لمحے پر کو ٹھہرا۔ سیڑھیاں محفوظ نہیں ہیں، یہاں کسی بھی اینگل پر سی سی ٹی وی موجود نہیں ہے۔ نچلا دروازہ اور داخلی دروازہ بند کر دیا جائے تو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کوئی آپ کا نچلے زینوں پر انتظار کر رہا ہے، آپ ادراک نہیں کر سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ لفٹ کا استعمال کیا جائے۔ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اترا تو سیلینا کو اس کا اچانک سے محتاط انداز سمجھ میں نہیں آیا۔ چھری پرس میں رکھتے ہوئے وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے اتری، لیکن اس کی ہائی ہیلز میں قید ایڑی بری طرح مڑی، یکدم ہی پیر رپٹا اور وہ اونتے منہ زینوں پر کلام بازی کھاتی نیچے جا گری۔ وہ یک لخت ہی ایک جانب ہو گیا تھا۔ اس کا سر پوری طرح دیوار سے ٹکرایا تھا اور کمر پر ریلنگ کا کونا زور سے لگا تھا۔ آہ، اس کی کراہ بے ساختہ تھی۔ یاسر نے لمحے پر کو ٹھہر کر گہرا سانس لیا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ یہ لڑکی آخر کوئی بھی کام ڈھنگ سے کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیا تم ہاتھ دے کر نہیں اٹھاؤ گے؟ اس نے آنکھوں میں تکلیف دہ حیرت لیے بت بن کر کھڑے یاسر کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ اسے چارونا چار اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھانا ہی پڑا۔ سیلینا نے اس کا ہاتھ تھاما اور جو ہی میکسی کی لمبائی سمیٹ کر اٹھنے لگی تو کڑچ کی آواز کے ساتھ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ آؤچ! ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب چونک کر دیکھا تھا۔ ہیل ٹوٹ چکی تھی، اس کی مہنگی سیاہ ہیل ٹوٹ چکی تھی۔ میری ہیل! اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے پیروں کی جانب دیکھا تھا، ساتھ ہی اس نے یاسر کے کندھے کا ایک ہاتھ سے سہارا بھی لے رکھا تھا۔ وہ انتہائی غیر آرامدہ ہوا، لبوں کو سیدھی لکیر میں بند کیے ہوئے تھا۔ میری اتنی مہنگی ہیل تھی، یا اللہ، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں ہیلز لینے کے لیے۔ وہ درمیان سے ٹوٹی ہیل کو ہاتھ میں اٹھائے روحانسی ہوئی کہہ رہی تھی۔ یاسر اس وقت کو کوس رہا تھا جب وہ اس کے پیچھے سینوں پر آیا تھا۔ باڈی گارڈ، ہیل ٹوٹ گئی ہے، اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ریجیکشن پر رونے والی لڑکی نہیں تھی، وہ اپنی ہیل کے ٹوٹ جانے پر رونے والی لڑکی تھی۔ میں بھی دیکھ سکتا ہوں یہ۔ اس نے اس کا ہاتھ نامحسوس طریقے سے اپنے کندھے سے ہٹایا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ تحمل سے بھی اتر سکتی تھی آپ۔ میں یہاں پر وکٹم ہوں، یہاں پر سب سے بڑا وکٹم ابھی میں ہوں، اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر کہا اور جو ہی نیچے اترنے لگا تو سیلینا نے اس کا بازو کوہنی سے تھام لیا۔ اب میں ننگے پیر کیسے جاؤں گی باڈی گارڈ؟ ایکٹریس کو اور موقع مل جائے گا میرے پیچھے باتیں کرنے کا۔ دیکھو ذرا، پہلے تو کارڈ نہیں تھا آفیشل لفٹ کا، اب تو جوتے بھی چلے گئے، ایسے کہیں گی سب۔ اسٹائل ہوئے بالوں کا بیڑا غرق ہو چکا تھا، ہاتھ لگنے کی وجہ سے آنکھ پر لگا سیاہ لائنر پھیل کر رخسار تک آ رہا تھا۔ وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ تو آپ فائنلی مان رہی ہیں کہ آفیشل کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے آپ زینے استعمال کر رہی تھی؟ سیلینا نے چونک کر خشک ہوتے رنگ کے ساتھ یاسر کی سرمئی آنکھیں دیکھی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ نہیں تو مطلب؟
हाँ, हार मानना ही पड़ी। वो इसके सामने अनजाने में इतराफ़ कर चुकी थी। पब्लिक लिफ्ट खाएगी नहीं आपको, लेकिन लोगों की बातें और नज़रें ज़रूर खा जाएंगी। इसने आहिस्ता से कहा तो यासिर चुप सा हो गया। फिर इसके नंगे पैरों की जानिब देखा। गार्ड जी, क्या आप मेरी मदद करोगे? मैं खुदा की कसम आपको आइंदा छुरी नहीं दिखाऊंगी। मुझे तो इससे सिर्फ सेब काटने आते हैं और मैंने कराटे में कंग फू भी नहीं कर रखा। कंग फू में कराटे नहीं होता, कंग फू कराटे होता है। यासिर ने इस हालत में भी तस्दीक की थी इसकी। वो अब भूखों की तरह इसके चमचमाते स्याह जूतों को देख रही थी। फिर चमकती आंखें लिए मुस्कुराते हुए जूं ही चेहरा उठाकर लब खोले ही थे कि मैं अपने जूते नहीं दूंगा। इसके बेमुरव्वती से कहने पर इसने मायूसी से लब बंद कर लिए। फिर छुपकर दोनों हील्स उठाकर हाथ में थाम ली। गरीब की बद्दुआ लेकर कभी खुश नहीं रहोगे तुम। वो नंगे पैर नीचे उतरती हुई इसे धमका रही थी। वो हाथ में फाइल थामे खड़ा रहा। फिर इसे आवाज़ दी, रुको। वो फौरन ऊपर आई थी। मुझे पता था तुम मुझे अपने जूते दे दोगे। मतलब शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, हरकतें तो अच्छी होंगी ना। मैं तुम्हें अपने जूते नहीं दे रहा, इसने कतियत से कहा। तो नंगे पैर खड़ी सेलिना का दिल किया इस पर लानत भेज दे। फिर रुका क्यों था? वो तड़की, यहाँ रुको, मैं जूते लेकर आता हूँ। इसी के साथ वो तेजी से सीने फैलांगता अगले ही पल आंखों के सामने से गायब हो चुका था। वो होंकों की तरह इसके गायब हो जाने पर खड़ी रही। क्या ये प्रैंक करके किया है? प्रैंक वाला बंदा लगता तो नहीं है। खैर, इसने गहरा सांस लिया और मोबाइल नजरों के सामने करती जीनों पर ही बैठ गई। कैंडी क्रश खेलने की आवाज़ जीनों पर ऊपर तक गूंज रही थी। यासिर लिफ्ट में सवार हुआ, अंडरग्राउंड फ्लोर पर फिर से जा रहा था। चीफ हनीफा के बहुत से जूते और कपड़े यहाँ पर बतौर इमरजेंसी मौजूद थे। इसे किसी भी तरह नज़र बचाकर इनके जूते उड़ाने थे। वो इनके ऑफिस में दाखिल हुआ। हनीफा शायद वाशरूम में थे। इसने एक मोहतात नज़र वाशरूम के बंद दरवाजे पर डाली। फिर एक जानिब बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला। अंदर कई जूते रखे थे। वो एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। अंदर किसी लड़की के जूते भी रखे थे, बिल्कुल नए स्याह हील्स। इसने ना समझी से पलट कर वाशरूम के बंद दरवाजे को देखा था। इस उम्र में भी? सीरियसली? अगला पल ज़ाया किए बगैर वो झुका और हील्स निकाल लीं। फिर तेज़ी से बाहर निकला और लिफ्ट की जानिब बढ़ा। 7 सालों में यासिर आलम को किसी ने हाथ में हील्स लिए भागते हुए नहीं देखा था। लिफ्ट में मौजूद बॉडीगार्ड्स ने इसके हाथ में हील्स देखी तो चौंक से गए। ऑफिसर, ये हील्स ये मेरी हैं जी, सब एक साथ बोले थे। इसने आंखें यकलक बंद करके खोली। उफ, मेरा मतलब मेरी मामा की हैं। आपकी मामा की हील्स एजेंसी के अंडरग्राउंड फ्लोर पर क्या कर रही हैं? वो भी बॉडीगार्ड्स थे। हंसकर पूछा तो इसके कान सुर्ख हुए। मैं इन्हें बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहता था। सबसे ज़्यादा महफूज जगह इस फ्लोर पर मौजूद मेरा ऑफिस ही है। ओह, हमारी तरफ से भी विश करते हैं आंटी को, एक और बॉडीगार्ड बोला तो इसने सर अस्पात में हिलाया। लिफ्ट के ऊपर पहुंचते ही वो तेजी से सीनों की जानिब भागा था। युविल और नज़र जो ऑफिस से निकल रहे थे, इसे हील्स हाथ में लिए सीनों की जानिब फटते देखकर ठहर से गए। फिर एक दूसरे को देखा। ये गार्ड्स आजकल किस किस्म का फैशन कर रहे हैं? नज़र के कहने पर युविल ने कंधे उचकाए थे। ये लो। फूला सांस बहाल करते हुए इसने हील्स इसके सामने रखी तो वह आंखें पूरी खोलकर उठ खड़ी हुई। फिर चेहरा उठाकर इसे देखा। अपनी गर्लफ्रेंड की तो चुरा कर नहीं ले आए कहीं? वो जानना चाहती थी। इसने इंतहाई खौफत ज़दा सी निगाह इस पर डाली। पब्लिक लिफ्ट इस्तेमाल करना अकेली सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से बेहतर है। वो इसे एक बार फिर नसीहत करने लगा था, लेकिन सेलिना मजाल है जो इसे सुन रही हो। भाड़ में जाए पब्लिक लिफ्ट, मैं सीढ़ियों से बहुत खुश हूँ। अच्छा बताओ, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? इसने ठहर कर चेहरा उठाते हुए पूछा तो यासिर ने बस एक नज़र इसे देखा। फिर सर अस्पात में हिलाकर तेज़ी से सीने उतर गया। अपने पीछे सीनों का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो सेलिना ऊपर डर सी गई। इससे क्या हुआ? हील्स इसे थोड़ी पड़ी थी, लेकिन वो इनमें आसानी चल सकती थी। अपना पर्स और फ़ोन हाथ में लिए वो पहले लाइनर और बिखरे बालों की परवाह किए बगैर बाहर निकल आई थी। साथ से गुजरते लोग इसे देखकर मुस्कुराहट तपाते गुजर रहे थे। इसने अपने चेहरे पर हाथ लगाया। क्या कुछ लगा हुआ था इसके मुंह पर? वो तेज़ी से गर्दन झुकाकर अपनी कार की जानिब बढ़ी और जो ही बैक मिरर में अपना चेहरा देखा तो थक से रह गई। जाहिल बॉडीगार्ड, बता नहीं सकता था, गधा कहीं का। वो अब स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे यासिर को कोसने दे रही थी। कितने लोगों ने इसे देखा था? उफ उफ। पिछले दिनों सेलिना मजहर को ग्लैमर एजेंसी के दाखिली हॉल में देखा गया है। रिपोर्टर्स के मुस्तकिल सवालात पर भी वो खामोशी से सर झुकाए अपने बॉडीगार्ड के हमरा चली गईं। मुख्तलिफ एजेंसीज के माहिर तबसरा निगारों का यही ख्याल है कि सेलिना अपने कम बैक की तैयारी भरपूर अंदाज से करना चाहती हैं, लेकिन वो कैपिटल पैसे की कमी के बायस खामोश हैं। तबसरा निगारों के हिसाब से आने वाले दिनों में सेलिना मुख्तलिफ कमर्शियल में भी नजर आ सकती हैं। वसी से कीमती टीवी लाउंज में चलते टीवी की आवाज़ पर दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होती मारिया लम्हे पर को ठहर गई थी। ऑफ वाइट पेश कीमत सोफों पर बराजमान वाजिद हसन अफसोस भरी निगाहों से टीवी स्क्रीन को तक रहा था। वो शायद अभी अभी काम से वापस आया था। इसके ड्रेस शर्ट के ऊपरी बटन आरामदा से अंदाज में खुले थे और टाई की गिरा ढीली थी। मारिया को लम्हों में ही अपना वजूद जलता हुआ महसूस होने लगा था।
लेडीज 3 पीस सूट में वर्क हील्स पहने छोटे कटे बालों के साथ वो पावकार लग रही थी। वो एक खूबसूरत औरत थी, वाजिद के एन लाइक। दिन कैसा रहा वाजिद? वो मुस्कुरा कर आगे आई तो वाजिद चौंका। वो इसकी मौजूदगी से बेखबर लगता था। फिर थकन ज़्यादा सा मुस्कुरा कर टीवी ऑफ किया। वो मारिया की मौजूदगी में सेलिना को नहीं देखना चाहता था। इसने बारहा कहा था कि वो इसे छोड़ चुका था, लेकिन दिल के किसी खाने में वो आज तक पूरी आबोताब के साथ पन्नेहान थी। वैसे ही नॉर्मल वर्क डे। तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मारिया अपने पाप अकरम अवान की एनजीओस और रेगुलेट करती फर्म की डायरेक्टर इंचार्ज थी। इसके अंडर कई बार सोख एनजीओस सोशल वर्क किया करती थी। अच्छा था। लाड़काना का प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है। जल्द ही प्राइमरी एजुकेशन पर काम शुरू करेंगे। फंडिंग्स की बाबत बात हुई है, लेकिन कुछ खास इन्वेस्टर्स अभी दिलचस्पी लेते नज़र नहीं आ रहे इस प्रोजेक्ट में। जो ही इस प्रोजेक्ट के जैकपॉट का अंदाज़ा होगा तो लोग खुद ही खींचे चले आएंगे। इसने खालिस कारोबारी जुबान में मुद्दा बयान किया तो वाजिद समझकर सर हिलाने लगा। मारिया की ज़ेरक आंखें इसके नुचुड़े रंग पर जमी थी। क्या हुआ? तुम ठीक हो? इसने हाथ आगे बढ़ाकर इसके रुखसार पर रखा तो वाजिद ने नामहसूस तरीके से इसका हाथ अपने रुखसार से हटाया। हाँ ठीक हूँ। सेलिना की वजह से परेशान हो? नरम लहजे में किए गए इस तबसार पर वो बुरी तरह चौंका था। इतनी बुरी तरह कि मारिया को इसके अंदाज पर हैरत होने लगी। इसे अपने अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा था। नहीं मतलब, अब इससे मेरा क्या ताल्लुक है? बमुश्किल मुस्कुरा कर कहा, लेकिन इसकी रंगत अजीब सी थी। तुम मुझसे शेयर कर सकते हो वाजिद। इसने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ अपने हाथ में लिया तो वाजिद के पुरकशिश नकुश पर साया सा लहराया। हाँ, परेशान हूँ इसकी वजह से। 1 साल से बहुत क्राइसिस में है वो। पता नहीं काम के बगैर खुद को कैसे मैनेज कर पा रही है वो। और इसकी बात सुनते ही मारिया के अंदर एक आग सी जलने लगी थी। इसने तंग होते सीने के साथ इसका हाथ थपथपाया था। तुम बात क्यों नहीं कर लेते उससे? कुछ लम्हों बाद इसने कहा तो वाजिद ने सर नफ़ी में हिलाया। मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो मेरी किसी मदद के लिए राज़ी नहीं होगी। क्या मैं बात करूं इससे? इसने कहा तो वाजिद नरमी से मुस्कुराया, फिर अपना हाथ इसके हाथ से निकाल लिया। मारिया को कभी अपना हाथ इतना खाली महसूस नहीं हुआ था। नहीं, वो हमारा मसला नहीं है। वो उठ खड़ा हुआ, साथ ही सोफे के हत्थे से अपना कोट भी उठा लिया। वो हमारा मसला नहीं है, लेकिन तुम इसे हमारा मसला बना रहे हो वाजिद। इसने बहुत ज़ब्त से कहा था। वो आगे बढ़ते बढ़ते ठहर सका, फिर मुड़कर इसे देखा। मैंने दोबारा इसे कभी अप्रोच नहीं किया मारिया, ये सच था। इसने कभी सेलिना की जानिब पलट कर भी नहीं देखा था। मारिया ने ज़ब्त से गुलाबी पड़ती आंखों से इसे देखा और फिर उठकर इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई। वो वाजिद से छोटी थी। खराबी यहाँ है वाजिद हसन, इसने इसके दिल पर उंगली रखकर कहा था। एक लम्हे को सामने खड़े शख्स के दिल पर जोरदार सा खूंसा पड़ा। इसकी बीवी इसके लाख छुपाने पर भी इसे जानती थी। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। वो इसका हाथ हटाकर तेज़ी से बाहर निकल गया। मारिया जाने कब तक लाउंज के वस्त में इस्तादा रही। टांगें जब दर्द करने लगीं तो वह आहिस्तगी से सोफे पर बैठ गई। इसका चेहरा ऑक्सीजन की कमी के बायस सफ़ेद लग रहा था और रगों में पलती जलन हर लम्हा पड़ रही थी। इसकी ज़िंदगी में अगर कोई एक शिकाफ था तो इसका नाम सेलिना मजहर था, और वह इस शिकाफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। यासिर राजी है इस इन्वेस्टिगेशन के लिए? सलमान आबिद ने झूलती कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा था। वो एक दर्जा बुलंद रैंक के चीफ थे। सामने विराजमान हनीफा ने सर असबात में हिलाया था। कुछ खास जवाब तो नहीं दिया है इसने अभी, देखते हैं। अपडेट करने का कह कर गया है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन हमारे अंडर हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। सलमान ने साथ रखी फाइल्स में से एक खोलकर सामने रखी। अगर यासिर ने मना कर दिया तो हमारे पास और भी मुंजे हुए बॉडीगार्ड्स हैं। हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, अदारे और एक्ट्रेस दोनों की। बहरहाल हमारा काम यही है, हिफाजत करना। इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम है भी नहीं, लेकिन अगर एजेंसी की बात यही रह जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर से पुलिस को इन्वॉल्व करने का मतलब तुम अच्छे से जानते हो। हमारी मुकम्मल साख पर असर पड़ सकता है। वो फाइल खोले, वर्क गिरदानी करते हुए मसरूफ सा कह रहे थे। सेलिना के पास बॉडीगार्ड नहीं है हनीफा। मैंने सुना है इसके हालात अच्छे नहीं चल रहे। अब के इन्होंने फिक्रमंदी से चेहरा उठाकर पूछा तो हनीफा ने एक गहरा सांस लिया। दिल पर बोझ तो इनके भी था। जानता हूँ, मैं बॉडीगार्ड रखवा सकता हूँ इसके लिए, लेकिन क्या जवाब पेश करूँगा अपनी इस पर्सनल खिदमत का? मेरे पास जवाब नहीं है इसकी ऐसी मदद करने का। इनके लहजे में अजीब बेबसी थी। सलमान ने अफसोस से सर हिलाया था। बता क्यों नहीं देते तुम इसे? कब तक यूँ दूर से देखते रहोगे इसे? मैंने सारी ज़िंदगी इसके लिए कुछ नहीं किया। अपनी आखिरी उम्र में इसके सामने जाकर अपने अमाल की जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता मैं। सोच इतना। वो मुस्कुराए, लेकिन सलमान नहीं मुस्कुरा सके। कुछ शक नहीं कि यासिर के हेड हो तुम। ऐसी ही बातें करता है वो भी। वो बातें करता कब है चीफ? बमुश्किल मुंह से चंद लफ्ज़ निकालकर हम पर एहसान करता है। एक से ज़ायद सवाल कर लूँ तो यूं घूरता है जैसे खा जाएगा।
ان کے کہنے پر سلمان ہنس پڑے تھے۔ اسی لمحے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو وہ اس طرف متوجہ ہوئے۔ سامنے 3 باڈی گارڈز کھڑے تھے، مخصوص باڈی گارڈز کے یونیفارم میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے جمائے۔ یہ سب ایک ہی ٹیم کا حصہ تھے۔ ان کی ٹیم کا نام ٹیم بی تھا۔ ٹیم اے کا آفس ان سے پہلے تھا۔ اسی ترتیب کے حساب سے انہیں نام دیا گیا تھا۔ ایسی کئی ٹیمز اس ایجنسی میں مختلف چیف انچارجز کے انڈر کام کر رہی تھی۔ وہ کس ایکٹریس کے باڈی گارڈ تھے اور ایجنسی میں ان کی کیا ذمہ داریاں تھیں، ان سب پر چیک رکھنا حنیفہ مظہر کا کام تھا، اور حنیفہ مظہر پر چیک رکھنا سلمان عابد کا کام تھا۔ اسی ٹیم کا حصہ یاسر بھی تھا۔ تم 3 کیوں ہو؟ یاسر کہاں ہے؟ سلمان کے پوچھنے پر وہ تینوں آگے بڑھ آئے تھے۔ وہ اپنی ہیلز لے کر اوپر فلور پر گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کی زبان پھسٹی۔ اس کا نام شیر حسن تھا۔ اس کے ساتھ کھڑے دونوں باڈی گارڈز کے مقابلے میں اس کا قد چھوٹا تھا اور وہ اکثر قدرے گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس ٹیم کا سب سے چھوٹا گارڈ، صاف رنگت اور بھوری آنکھوں والا۔ واٹ؟ اس کے جواب پر حنیفہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ شیر کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے زار کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اسے 1000 دفعہ کہا تھا کہ اتنا زیادہ سینہ تان کر مت کھڑے ہوا کرو، لیکن وہ زار ہی کیا جو کسی کام میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لے۔ اس کا قد حسن سے لمبا تھا، رنگت گندمی اور آنکھیں گہری سیاہ تھی۔ وہ ایک پرکشش دکھنے والا مرد تھا، مطلب وہ ان کی ماما کی ہیلز تھیں، ان کی برتھڈے کا گفٹ تھا، وہی لے کر گئے ہیں آفیسر۔ کیا بکواس کر رہے ہو شیر؟ حنیفہ نے اس کے مذاق پر اسے گھرکا تھا۔ اس کی ماں کی ہیلز یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا کہنا تھا کہ گھر میں اس کے پاس ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ اب کے بولنے والا ساحر تھا، مضبوط جبڑے، ٹین ہوئی رنگت اور کثرتی جسم والے ساحر۔ اس کی اٹھان سے ہی اس کی ٹف روٹین کا اندازہ ہوتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ مسکرانا تو بالکل بھی نہیں آتا تھا اسے۔ جانے وہ سارا سال سیدھے جبڑے کے ساتھ کیسے گزارتا آیا تھا۔ ساحر، زار اور یاسر ہم عمر تھے، اسی لیے وہ آپس میں آرام دہ ہو کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ شیر نیا تھا، وہ ان سے تم سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 3 ہینڈسم کارڈز تھے اور ان کا سپریم ہینڈسم پارٹ ماں کی ہیلز لیے اوپر فلور پر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس گھر میں ہیلز چھپانے کی جگہ نہیں تھی اور تم لوگوں نے یقین کر لیا۔ حنیفہ نے انتہائی سکون سے ہاتھ باندھ کر ان 3 گدھوں کی جانب دیکھا تھا۔ سلمان نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ ہمیں پتہ ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ زار کی ذہین آنکھیں چمکی تھی۔ یقیناً کسی ایکٹریس کو ہیلز کی ضرورت ہوگی اور پرائیویسی کے خیال سے یاسر نے یہ جھوٹ بولا ہوگا۔ وہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کیا ہے، لیکن ہم سب نے ایسے ری ایکٹ کیا جیسے اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں ہے۔ ماں کی ہیلز ہیں تو ہیں، اب کون سی ماں کی ہیلز ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے۔ سلمان ہنس پڑے تھے اور حنیفہ اس کی صاف کوئی سے محسوس ہوئے تھے۔ یہ بات یاسر کے سامنے کر کے دکھاؤ تو مانوں۔ ہاتھ باندھ کر مذاق اڑاتے انداز میں کہا تو زار نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں یہ اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں سر۔ بالکل، کہنے کے بعد 2-3 دن تک پھر آپ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہ سکیں گے زار بھائی، حسن نے سمجھ کر معصومیت سے کہا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یاسر کے وائلنس سے کون واقف نہیں تھا بقول ساحر کے؟ اس کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی تھی۔ حنیفہ اور سلمان نے ایک ساتھ چہروں پر ابھرتی مسکراہٹ روکی تھی۔ زار نے حسن کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو بیٹا تو باہر بچ، تم چپ رہو، آپ بھی چپ رہیں۔ وہ دونوں سرگوشی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جبکہ ساحر ان کے ساتھ بالکل سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ یاسر کچھ عرصے تک ایک سنگل کیس پر کام کرے گا، کیس کے حوالے سے بریف کر دیا ہے میں نے اسے، کچھ دنوں تک وہ جواب دے گا مجھے۔ تم دونوں تو اس کیس میں آفیشلی کام نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ زار اور حسن کی جانب تھا۔ وہ دونوں عمیرہ زاہد کے باڈی گارڈز تھے، کیونکہ عمیرہ زاہد کا ورڈ ٹو ورڈ متوقع ہے اگلے دنوں میں۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کو باڈی گارڈز کے ساتھ سیکیورٹی کے حساب سے جانا پڑے۔ ایسے میں صرف ساحر مدد کر سکتا ہے اس کی، اگر اسے مدد درکار ہو تو دیکھ لینا تم تینوں، خاص کر تم ساحر۔ انہوں نے آخر میں سنجیدگی سے اس کی جانب اشارہ کر کے کہا تو ساحر نے سر اسبات میں ہلایا۔ پھر وہ تینوں چیف کے آفس سے پلٹ آئے۔ کیا کیس ہوگا؟ باہر نکلتے ہی شیر نے پوچھا تو زار نے کندھے اچکائے۔ انہوں نے ہمیں کیس کی نوعیت نہیں بتائی، شاید بہت کانفیڈینشیل ہو، 1 on 1 کام کرنے والا کیس ہو۔ ایسے کیسز میں 1 مین انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، ٹیمز تحقیقات نہیں کیا کرتی۔ لیکن اکیلے انسان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کیس ہینڈل کرنا؟ ساتھ چلتے حسن نے پوچھا تو زار نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیس پیچیدہ نہیں ہوتا زیادہ، یا پھر وہ انسان اس قابل ہوتا ہے کہ کیس کو اکیلے ہینڈل کر سکے۔ حسن نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کے لیے بہت سی اصطلاحات اب بھی نہیں تھی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیف اس کیس کے حوالے سے کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی سے ساتھ چلتے ساحر نے پہلی دفعہ کہا تو وہ دونوں ہی سر ہلانے لگے۔ ساحر ان سے تجربے میں کہیں زیادہ تھا۔ وہ اور یاسر دونوں ایک ساتھ ہی اس ایجنسی کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، جبکہ زار اور حسن بعد میں ان کی ٹیم کا حصہ بنے تھے۔ یاسر اکیلا نہیں ہے، ہم ہر ممکن مدد کریں گے اس کی، کچھ پل بعد زار نے کہا تھا۔ وہ اس گروپ کا برین تھا، دی انٹیلیجنٹ ون۔
साहिर खामोश रहकर ठंडे दिमाग से काम करने वाला आदमी था। इसका जिस्म इन चारों में खासा कसरती था। इसे वर्कआउट करने का बेहद शौक था और वो अपने फारिग औकात में जिम ही में पाया जाता था। शेर छोटा और मासूम था, लेकिन अपने काम से लगाव इसे भी इन चारों जितना ही था। आने वाले वक्तों में वो एक अहम रुकन बनने वाला था। और सबसे आखिर में यासिर था, कम को संजीदा, ज़ेरिक और बहुत लिया दिया सा। बकौल ज़ार के इसके चेहरे पर लिखा होता था कि मुझसे बात मत करो। वो एक जानिब बने अपने कैबिन्स की जानिब बढ़ आए थे। तुम आज शाम इफ्रा के निकाह में शिरकत नहीं कर रही हो सेलीन। मुझे तुम्हारे बाप के घराने से शदीद नफरत है। मैं इनकी शक्लें तक नहीं देखना चाहती, इसलिए तुम भी वहाँ नहीं जाओगी। अभी वो नहा कर निकली ही थी कि माँ को लाउंज के सोफे पर विराजमान देखकर यकलक ही सीधी हुई। इफ्रा इसके ताया की बेटी थी। इस पूरी दुनिया में मेरे पास आपके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है माँ। वो लोग जैसा भी सलूक हमारे साथ रखते रहे हों, लेकिन वो हमारे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को माफ़ किया जा सकता है, प्लीज़ मुझे मेरे रिश्ते बचाने दें। इसे अगर किसी चीज़ से इस दुनिया में नफरत थी तो वो था कतई ताल्लुक़ करना, रिश्ते तोड़ना। जो दिल रिश्ते तोड़ने के लिए दरकार था वो इस दिल से खाली थी। इसके पास वो दिल नहीं था जो कतई रहमी कर सकता हो। शगुफ्ता ने इंतहाई कड़वी निगाह डाली थी इसके सिरापे पर। वो तुम्हारे सौतेले रिश्तेदार हैं बेवकूफ़ लड़की, नफरत करते हैं तुमसे, मुझसे। तुम्हें सिर्फ जलील करने के लिए बुला रहे हैं वो लोग। सगे हो या सौतेले, रिश्ते तो हैं ना। मेरे पास इन रिश्तों को गंवाने का कोई जवाब नहीं है, इसने कहा तो आवाज़ आखिर में लरस सी गई। अंदर कहीं वो जानती थी कि शगुफ्ता दुरुस्त थी। वो इसे पसंद नहीं करते थे। वो मजहबी लोग थे, नेक और मुत्तका। परहेज़गारों की सफ़ में इस जैसी अदाकारा की कोई जगह नहीं थी। तुम्हें कुछ शौक़ है अपने दिल को छलनी करने का, जाओ शौक़ से जाओ, लेकिन जब वो तुम्हारा दिल तोड़ दें तो मेरे पास रोती हुई मत आना। मैं तब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो पंकार कर यकलक ही उठी और तेज़ी से दाखिली दरवाज़ा पार करके निकलती चली गई। शाम के उस पहर अपार्टमेंट मध्यम रोशनियों से रोशन था। वो उदास आंखें लिए दरमियान में ही खड़ी रह गई, फिर दांत जमाकर अपने कमरे की जानिब बढ़ आई। शगुफ्ता की किसी बात पर इसने ध्यान नहीं दिया था। सुर्ख रेशमी लिबास पर चमचम करते सफ़ेद सितारों का कामदार चौड़ा पहने वो खामोशी से अपने बालों को संवार रही थी। इस लंबी कमीज और चूड़ीदार पजामे के साथ इसके पास कामदार दुपट्टा भी मौजूद था। दुपट्टा जो वो अक्सर नहीं लिया करती थी। शहद रंग बालों को खुला छोड़े चेहरे को मुनासिब मेकअप से सजाकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आई थी। कमरे में एक जानिब बने जूतों के दराज का दरवाज़ा खोलकर झुकी तो बाल लहरा कर आगे को गिरे। वो लम्हे भर को ठहर गई थी। इसकी सुर्ख मखमली हील्स के साथ बॉडीगार्ड की दी गई हील्स भी रखी थी। अगले ही पल इसने सर छटक कर सुर्ख हील्स निकाली और बेड पर बैठकर इसके नाजुक स्टेप्स बांधने लगी। जिनके घर वो निकाह की दावत पर जा रही थी वो वाकतन इसके सौतेले रिश्तेदार थे। इसकी माँ ने अपने पहले शौहर से तलाक ले ली थी। वो इसकी कम माया सी तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर सकी थी। फिर वो एक बार में जॉब करती रही। सेलिना तब महज 6 साल की थी। इसकी माँ अगले कई सालों में बार हॉस्टेस के ओहदे पर फाइज हो गई। इन्हीं दिनों वो अपने दूसरे शौहर से मिली थी। वो बार में सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता के लिए आया करते थे। शगुफ्ता अपनी ज़िंदगी से खुश थी, लेकिन अपने लिए एक अमीर घराने के बेटे को मोहब्बत में पागल देखकर वो मज़ीद इसे टाल नहीं सकी। इसका सौतेला बाप एक शरीफ व नफ्स शख्स था। इसे शगुफ्ता से निकाह करके इज्जत से अपने घर ले जाना था। यहाँ तक कि इसे सेलिना के वजूद से भी कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर जो सोचा वैसा ना हो सका। इसने अपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की जानिब बढ़ आई। कार पार्किंग एरिया में आकर पड़ते हुए लम्हे पर के लिए इसे कुछ महसूस हुआ था। वो ठहर सी गई, फिर पलटकर खौफज़दा निगाहों से अपने पीछे देखा। मगरिब बीत चुकी थी और पार्किंग एरिया खासा सुनसान हो रहा था। घबराकर इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर आ बैठी। अगले ही पल अब वो सड़क पर सोचों में गुमसुम से ड्राइव कर रही थी। इसकी माँ और एहसन अली ने शादी कर ली। वो इन दोनों को इज्जत की चादर ओढ़ाकर अपने घर ले आए, लेकिन इनके घर वाले बार हॉस्टेस और इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सके। वो अपने कीमती सपूत को इन दो जिंदगियों के साथ जिल्लत से दोचार होता हुआ नहीं देख सकते थे। एहसन अली 3 भाई थे। मुराद अली और शहीद अली दोनों इसके ताया थे, वही जिन्हें वो कभी एक आंख भी नहीं भाई थी। किस्मत ने साथ नहीं दिया और एहसन की अचानक मौत ने इन दोनों पर आसमान गिरा दिया। वो इस घर में नौकरानी किसी हैसियत से ज़िंदगी गुजारने लगी। इसने बमुश्किल थक्कों से सेकंड ईयर क्लियर किया और फिर अपनी ज़िंदगी के लिए निकल पड़ी। नज़र अमजद इसका पहला मददगार था। इसी के ज़रिए इसे एक ड्रामे में छोटा सा रोल मिल गया था। वो खूबसूरत थी, पेट खाली और अजियतनाक महरूमी के बाद वो इस ऑफ़र को ठुकराने की जसारत नहीं कर सकती थी। इसे टीवी स्क्रीन पर देखकर घर में एक तूफान सा बर्पा हो गया था। वो इनके भाई की सौतेली बेटी थी। वो मानती या ना मानते, लेकिन दुनिया मानती थी। लोगों ने इनसे तरह तरह के सवालात किए तो वो जवाब नहीं दे सके, और फिर रद्द अमल ये निकला कि शहीर ने भरे घर में इसे सबके सामने मारा। इसे याद था वो उस वक़्त बहुत कमज़ोर थी। इनके थप्पड़ से ज़मीन पर जा गिरी थी, लेकिन इसने उफ तक नहीं कहा। घर वालों ने इन दोनों माँ बेटी से बायकॉट कर लिया। कुछ अरसे तक वो इन्हें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन फिर जब सेलिना को एक बड़े ड्रामे में काम करने की ऑफ़र आई
اور اس نے وہ آفر قبول کر لی، تب وہ رات ان کی اس گھر میں آخری رات ثابت ہوئی۔ انہیں گھر سے در بدر کر دیا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر کی چوکھٹ تک چلی آئی تھی۔ ڈرامہ کامیاب ہوا تو اس نے اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ کئی سال گزر گئے اور اس کا نام صفِ اول کی ایکٹریس میں آنے لگا۔ اس کے حالات اچھے ہو گئے۔ وہ اپنی ماں اور اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں اس کے سوتیلے رشتہ داروں نے اسے رابطہ کر کے اسے اپنے پاس واپس آنے کی دعوت دی، تو وہ شگفتہ کی تنبیہ پر بھی ان کو انکار نہ کر سکی۔ وہ رشتوں کو کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن وقت گواہ تھا جب بھی دوبارہ وہ اس گھر میں بلائی گئی تھی، ذلت کے لیے بلائی گئی تھی۔ شہیر اور مراد دونوں خاصے سخت مذہبی تھے۔ وہ اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن عمر اسے ہمیشہ بلا لیا کرتا تھا۔ عمر اس گھر میں اس کا خیر خواہ تھا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پھر سے اسی جگہ جا رہی تھی، اسی جگہ جہاں سے ہمیشہ تکلیف ملا کرتی تھی، ہمیشہ کی طرح اس امید پر کہ شاید اب کچھ بدل گیا ہو، شاید اب دلوں میں رحم آ گیا ہو۔ جو اللہ کے قریب ہوں ان کے دل تو نرم ہوتے ہیں نا، پھر اس کے سوتیلے رشتہ داروں کے دل اس کے لیے اتنے سخت کیوں تھے بھلا؟ وہ زیادہ مذہب کو نہیں جانتی تھی، لیکن جانے کیوں وہ مذہبی لوگوں سے اچھی امید رکھا کرتی تھی۔ ایسے لوگ امید دیا کرتے تھے اور اسے نا امید ہونے سے نفرت تھی۔ سڑک پر بڑھتی کار درمیانی رفتار سے چل رہی تھی اور وہ ڈرائیو کرتی گہری سوچوں میں گم تھی۔ اگلے کئی لمحات میں وہ اپنے باپ کے گھر کی چھت تلے موجود تھی۔ وسیع و ریز بنگلہ ایک شان سے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ سبزہ زار پر برقی کمکمے لگے تھے۔ ان سنہری کمکموں تلے وہ سرخ لباس میں دمک رہی تھی۔ افرا اور عزیر مراد کے بیٹے تھے، جبکہ مہجبین اور عمر شہیر کے بچے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا خوشحال گھرانہ تھا جو اس وسیع سے خوبصورت بنگلے میں رہا کرتا تھا۔ رشتہ داروں نے اسے سبزہ زار پر بیٹھے دیکھا تو رخ پھیر لیا۔ ڈرگس والے کیس کے بعد تو وہ ان کے لیے اور بھی قابل نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے بھاری دل کے ساتھ بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا اور پھر وہاں سے اٹھ آئی۔ لاؤنج میں مہمانوں کی بہتات تھی۔ نکاح سادگی سے کیا جا رہا تھا اور مہندی جیسی رسومات سے پرہیز کیا جا رہا تھا۔ عزت دار گھرانوں کی نشانی، کاش وہ بھی اتنی ہی عزت کے ساتھ کسی کی زندگی میں داخل ہو سکے۔ زبیدہ اور رحمہ تائی نے اسے داخلی دروازے پہ کھڑے دیکھا تو نفرت سے چہرہ پھیر لیا۔ رحمہ کے ہزار دفعہ منع کرنے پر بھی عمر نے سیلینا کو دعوت دے دی تھی۔ صوفوں پر براجمان مہمان اسے گردنیں موڑ موڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس کے رخسار گلابی ہوئے۔ بمشکل مسکراتے ہوئے وہ آگے بڑھائی، سلام کیا تو دبی دبی سی آواز میں بہت مایوس سا وعلیکم السلام موصول ہوا۔ اس نے ایک جانب رکھا خالی صوفہ دیکھا اور پھر وہاں بڑھ گئی۔ مہمانوں کے درمیان کوئی بھی اسے اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ پھر بھی مسکراتی رہی۔ یکا یک کسی کی آواز دینے پر اس نے گردن پھیر کر دیکھا تو لمحے بھر کے لیے ساری اداسی انعکاس ہو گئی۔ سامنے عمر کھڑا تھا، اس گھر میں واحد انسان جو سیلینا کو انسان سمجھتا تھا۔ وہ 24 سالہ نوجوان تھا، وجیہہ اور دراز قد، سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں بہت محبت سے سیلینا کو تک رہی تھیں۔ پھر وہ آگے بڑھایا، کیسی ہیں آپ ایکٹریس صاحبہ؟ وہ بے تکلفی سے کہتا اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ سفید کرتا شلوار میں ملبوس بہت ہینڈسم دکھ رہا تھا وہ۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ کہاں ہو اتنے دن سے؟ وہ ایک عمر کے آ جانے سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ عمر اس سے عمر میں 3 سال چھوٹا تھا، لیکن ان کے درمیان کی بے تکلفی بہت عزت والی تھی۔ البتہ رحمہ تائی کو اپنے بیٹے کی اس سے بے تکلفی ایک آنکھ نہیں پایا کرتی تھی۔ یہی تھا، بابا کے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹا رہا ہوں، آفس جاتا ہوں، آپ کو بہت مس کرتا ہوں۔ پرسوں آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا، بہت خوشی ہوئی۔ پھر کب آ رہا ہے آپ کا ڈرامہ؟ اس نے پوچھا تو سیلینا نے اسے کندھے اچکا کر دیکھا۔ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا میرے ساتھ؟ اس کا جواب سن کر وہ لمحے پر کے لیے چپ سا ہو گیا تھا، پھر آنکھوں میں ڈھیروں غصہ لیے بولا، سب بے وقوف ہیں، انہیں آپ کی ورتھ نہیں پتہ۔ جس دن پتہ چل گئی، کوئی آپ کو انکار کرنے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اسے اپنے لیے حساس ہوتا دیکھ کر اس کا دل محبت سے بھر گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کی پرواہ کیا کرتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، بس ینگ مین اتنا جذباتی نہیں ہوتے۔ تمہاری ماما نے تمہیں میرے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا نا، تو خیر نہیں ہوگی پھر تمہاری۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا تو وہ ہنس دیا، اب بڑا ہو گیا ہوں میں، اب آپ کو یا مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سیلینا مسکرا دی، لیکن وہ اسے یہ نہیں بتا سکی کہ لوگ جملے کسنے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، لوگ دل توڑنے کا کام ہمیشہ اچھے سے کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری پیاری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں آج، دیکھو ذرا۔ اس نے اسے پھر چھیڑا تو وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگا، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں لگ رہی یہاں۔ وہ اس کے کہنے پر چونکی تھی، پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے پر تھپ رسید کی، تائی تمہیں مار دیں گی، ایسی بات سوچنا بھی مت۔ شادی کروں گا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، لوگ شادی کے بعد بھی نہیں بخشتے۔ میں زندہ مثال ہوں تمہارے سامنے،
अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि रहमत आई एकदम दंदनाती हुई आंखें पड़ी और उमर को बाजू से घसीटकर उठाया। इनकी इस जारहाना हरकत पर यकदम ही लाउंज में विराजमान खवातीन दिलचस्पी से इनकी जानिब देखने लगी थी। उमर और सेलिना भी रहमा के ऐसे रद्द अमल पर हैरान रह गए थे। मामा क्या कर रही हैं आप? उमर ने एहतजाजन कहा, लेकिन रहमा इसे नहीं सुन रही थी। वो उंगली उठाए सेलिना को तनबीहा कर रही थी, मेरे बेटे से दूर रहो तुम, कुछ और नहीं तो कम से कम उम्र के फ़र्क का ही लिहाज कर लो। इसका रंग यकदम सफ़ेद हुआ था। उमर ने बेयकीनी से अपनी माँ की जानिब देखा था। मामा फॉर गॉड सेक ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने ही दावत दी है ना इसे यहाँ, कि जानते हुए भी कि ये लड़की ऐसी शरीफ दावतों के लायक नहीं है। इसे ऐसी महफिलें ज़ेब नहीं दिया करती और जैसी महफिलें इसे ज़ेब देती हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हलक में यकदम ही बहुत से कांटे उभर आए थे। इसने कुछ कहना चाहा लेकिन अल्फाज ने साथ नहीं दिया। मेहमानों की नज़रें, बल्कि कमकमों की आंखों को चुंधियाती हुई रोशनी, अपना सफ़ेद पड़ता रंग, सब कुछ कुटमुट हो रहा था। मामा खुदा के लिए हमेशा की बेइज्जती भी याद नहीं रहती इस लड़की को। अगर उमर तुम्हें इंसानियत के नाते दावत दे देता है तो कम से कम अपनी गैरत का ही ख्याल कर लिया करो। हमेशा बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहाँ आना ज़रूरी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि कुछ जगहों पर दावतें देना ज़रूरी होता है, ना चाहते हुए भी मकरू लोगों को बुलाना पड़ता है। ऐसे में उन लोगों को चाहिए कि अपनी और आगे वालों की मुश्किल आसान करके ना ही आएं। ऐसी बदमज़गी से तो बच जाएगा सब कुछ। शहद रंग आंखों में बहुत से आंसू चमक रहे थे, लेकिन रुखसार खुश्क रहे। वो आंसू आंखों के अंदर ही रखने की आदत थी, इसके आंसू बाहर नहीं गिरा करते थे। मामा आप ये क्या कह रही हैं? चले यहाँ से। सेलिना, सेलीन, बात सुने सेलिना। वो सेलिना को बाहर की जानिब भागते हुए देखकर इसे आवाज़ देता इसके पीछे गया था। वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। कई मर्द इसे पलट कर देख रहे थे। सब्ज़ाज़ार पर सुर्ख हील्स में भागती लड़की का दिल एक बार फिर जख्मी कर दिया गया था। उमर इसके पीछे इसे आवाज़ देता भाग रहा था। सेलिना, कहाँ जा रही हैं आप? इसने इसे कोहनी से थाम कर रोका तो वो ठहर गई। इसकी जानिब मुड़ने की हिम्मत नहीं थी इसके अंदर। वो इसके सामने आया, इसका चेहरा ऊंचा करके इसे देखा। इसकी आंखें गुलाबी थी। उमर को तकलीफ होने लगी। आई एम सॉरी सेलिन, रियली सॉरी। इसने नम आंखों से मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, नहीं तो ताई बिला वजह ताया से शिकायत करेंगी और फिर वो वायलेंस पर उतर आएंगे। कोई पूछे तो मुझे डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी मेरी वजह से मुश्किल मत बनाओ, इसने कहा और फिर इसके साथ से निकल आई। कार में बैठकर इसने जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाने में ही आफियत जानी थी। उमर अब तक बेबसी से इसे जाते हुए देख रहा था। सेलिना की ज़िंदगी में मौजूद हर मर्द मजबूर था। पहले वाजिद हसन, फिर नज़र अमजद और यूफिल, अब उमर। इसने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ाई और मरकज़ी शाहरा पर आ निकली। एजेंसी की बत्तियां हत्ता और मकान रात के उस पहर बंद थीं। सारी टीम्स अपना अपना काम समेटकर घरों को जा चुकी थी। इसकी टीम भी जा चुकी थी। एंटरटेनमेंट एजेंसी के निचले फ्लोर पर वो अपने कैबिन में तन्हा बैठा, लैपटॉप निगाहों के सामने खोले हुए था। अंधेरे में लैपटॉप की रोशन स्क्रीन इसके चेहरे को रोशन कर रही थी। अपना स्याह कोट उतार कर कुर्सी के पिछले हिस्से पर डाले वो आस्तीने कोनियों तक बराबर मोड़े हुए था। टाई की गिरा ढीली थी और वह बार बार एक ही वीडियो क्लिप पीछे करके देख रहा था। ये वही फुटेज थी जो हनीफा ने इसे दी थी। सेलिना को स्टॉक करते फॉर्मर मिलिटेंट की इसने वीडियो एक बार फिर रिवाइंड की। मुकम्मल स्याह लिबास से ढका वो स्टॉकर बिल्कुल खामोशी से एक कार के पीछे से निकल कर आया था। बिल्कुल किसी साए की तरह खामोश अंदाज था इसका। इसने वीडियो रोक रखी थी। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारी एजेंसी में कुछ गड़बड़ चल रही है। कोई हमारे दरमियान बहुत खामोशी से मौजूद है। हनीफा की बात इसके कानों में गूंजी थी। वो अपनी कुर्सी पर पीछे हो बैठा, फिर गूगल का टैब खोलकर इसके चौकट्टे में कुछ लिखने लगा। मारिया हसन, सर्च में मारिया हसन की तस्वीर, वाजिद हसन से मुतल्लिक मुख्तलिफ आर्टिकल्स और वाजिद के सूसर की सियासी कैंपेन से मुतल्लिक टॉक शोज़ और मशहूर तबसरा निगारों के कॉलम लिखे नजर आ रहे थे। हर कोई फॉर्मर मिलिटेंट्स को हायर नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए सियासी पावर का होना बहुत ज़रूरी है। मारिया हसन तहकीक करने पर एक अदना सी एनजीओस को रेगुलेट करती डायरेक्टर के तौर पर उभर रही थी। इसने कई आर्टिकल्स खोल कर पढ़े। वो एक पढ़ी लिखी और खासी बासुर्ख औरत थी, लेकिन फॉर्मर मिलिटेंट ही क्यों, ये काम तो बहुत से आम स्टॉकर्स भी कर सकते थे। स्क्रीन पर उभरी मारिया की मुस्कुराती तस्वीर को बिल्कुल खामोशी से देखते हुए वो कुछ सोच रहा था। कुछ देर मजीद सर्च करने के बाद वो अपनी जगह से उठ आया था। एक छोटी सी क्लिप और इंटरनेट पर मौजूद चंद रिसर्चेस के बाद मजीद क्या पता चल सकता था। अभी वो अपनी कुर्सी से उठा ही था कि यकदम कुछ खड़कने की आवाज़ पर ठहर सका। बिल्कुल आहिस्तगी से चेहरा फेर कर दरवाजे की जानिब देखा। राहदारी की बत्ती जल रही थी। वो अपना कोट उठाता बाहर चला आया। इसके कदमों की आवाज़ नहीं आती थी। बाहर निकलकर एक ताराना निगाह गुल हुई बत्तियों तले मौजूद अंधेरे में डूबे कैबिन्स पर डाली। कोई भी मौजूद नहीं था। इसने आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर राहदारी की बत्ती भी बंद कर दी थी। अब वो मुकम्मल अंधेरे में घिरा खड़ा था।
अगर शक हो तो पैनिक नहीं होना, खामोश रहकर बत्तियां बंद करनी है। जो मौजूद होगा वो अंधेरे के बायस हिलने की कोशिश करेगा। तब तुम आवाज़ सुनना, कदमों की, सांस लेने की। क्या तुम जानते हो यासिर, इंसानी सांस लेने की आवाज़ें बहुत दिलचस्प हुआ करती हैं। किसी के कहे गए जुमले इसकी समात में गूंजे थे। अगले ही पल इसे तेज़ी से सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई, यूं गोया कोई अंधेरे में दाखिली दरवाजे की जानिब भाग रहा हो। वो बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा और आगे वाले ने दरवाजे के नॉब पर हाथ रखा ही था कि यासिर ने ठंडी उंगलियों से इसकी गद्दी दबोच ली। आगे वाले की दबी दबी सी चीख बुलंद हुई थी। इसने ये आवाज़ कहीं सुन रखी थी, सेलिना से बात करती आवाज़। युविल। अगले ही पल इसने करीब में हाथ मारकर लाइट जलाई तो युविल का खौफ से जर्द चेहरा सामने आया। वो सर था पैर कपकपाहट का शिकार था। इसने इसे गिरेबान से थाम कर दीवार से लगाया था। तुम इस वक्त अंडरग्राउंड फ्लोर पर क्या कर रहे हो? यहाँ दाखिले का कार्ड कहाँ से मिला? सुरमई आंखें अंधेरे में स्याह महसूस हो रही थी। आवाज़ भारी और ठहरी हुई थी, चेहरा ठंडा था। मैं नज़र सर के कहने पर आया था यहाँ सेलिना का ऑफिशियल कार्ड उठाने। इसने इसका गिरेबान छोड़ दिया था, फिर 2 कदम पीछे हटा। तुम जानते हो ये सच नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ। नज़र सर ने मुझे भेजा था। वो ऊपर वाले फ्लोर पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी जुबान पूरी तरह लड़खड़ाई थी। क्यासी ने इसे गिरेबान से दबोच कर घसीटा और लिफ्ट में लिए सवार हुआ। एक हाथ से इसने इसे गिरेबान से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में कोट थाम रखा था। ऊपर मौजूद फ्लोर पर नज़र अमजद वाकई युविल का इंतजार कर रहा था। नज़र ने पसीने में शराबूर युविल को यासिर के हाथ तले कपकपाते देखा तो यकदम ही आगे बढ़ा। एक झटके से इसे यासिर की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? वो इस पर चिल्लाया था। युविल अब नज़र के पीछे खड़ा इसे खौफजदा निगाहों से तक रहा था। अस्सलामुअलैकुम। क्या इसे आपने निचले फ्लोर पर भेजा था सेलिना का ऑफिशियल कार्ड लेने? इसने धीमे लहजे में पूछा तो नज़र ने मशकूक अंदाज से इसे देखकर सर हिलाया। ये इदारे की सिक्योरिटी की बात है। आप किसी फॉरेन सब्जेक्ट को यूं हसास सिस्टम में नहीं भेज सकते। ये इंडस्ट्री मेरे अंडर काम करती है। मैं डायरेक्टर हूँ इसका, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद रखो। एक आम बॉडीगार्ड की हैसियत नहीं है डायरेक्टर को डिक्टेट करने की। नज़र ने संजीदगी से कहा तो युविल ने चौंक के इसके सर्द अंदाज को देखा। नज़र ऐसे तो बात नहीं किया करता था। आप इस पूरी ग्लैमर एजेंसी के डायरेक्टर नहीं हैं। आप इस एजेंसी में काम करते एक अदना से डिपार्टमेंट डायरेक्टर हैं। अदारे की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप अपनी हैसियत को देखें तो वो भी इस काबिल नहीं कि किसी अदना से गार्ड को डिक्टेट कर सके। सुबह तक आपको अपने ऑफिस में चार्ज फाइन असाइन कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी को रिस्क पर रखने की वजह से फ़ाइन की भरपाई करेंगे आप। इसने बिना किसी लचक के कहा और जो ही पलटने लगा तो नज़र की चौंकी हुई आवाज़ पे ठहर गया। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? और कैसा फ़ाइन? कौन चार्ज करेगा मुझे? कौन फाइल करेगा मेरे खिलाफ शिकायत? इसने एक नज़र उठाकर इसे देखा। मैं शब बखैर कहकर वो मुड़ा और फिर तेज़ी से जीनों की जानिब बढ़ गया। युविल और नज़र इसके जवाब पर लम्हे भर को साकित रह के थे। ये अहमक इंसान, क्या कहा इसने मुझे? हाँ, देख लूँगा मैं इसे। वो अब बुलंद आवाज़ से बोल रहा था। युविल इसको बमुश्किल घसीट कर अब लिफ्ट की जानिब ले जा रहा था। नज़र अमजद को आज तक किसी ने ऐसे गुस्सा नहीं दिलाया था। यासिर अपनी गाड़ी में सफ़र करता अब शहरी हुदूद से बाहर निकलता जा रहा था। इसका कोट फ्रंट सीट पर साथ ही रखा था और वह रात के अंधेरे में ड्राइव कर रहा था। इसका शहर में अपार्टमेंट मौजूद था लेकिन वह वहाँ बहुत कम रहा करता था क्योंकि गांव में इसके दादा तन्हा हुआ करते थे। दादी के इंतकाल के बाद वो खासे अकेले हो गए थे। इसने बारहा इन्हें अपने साथ शहर चलने को कहा लेकिन वह अपने घर को छोड़ने पर राज़ी नहीं थे। इसने भी कहना छोड़ दिया लेकिन वह दादा को ज़्यादा दिनों तक अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो हफ्ते में कई दफ़ा इनके पास रहने जाता था। कार घास के किते पर पार्क करके वो उतर आया, फिर आहिस्तगी से घर में दाखिल हुआ। दादा यकीनन रात के इस पहर सो रहे होंगे। इसने अभी दाखिली दरवाजे से कदम अंदर रखा ही था कि किसी ने लाउंज की बत्तियां रोशन कर दी। वो गड़बड़ाया था। दादा टांग पर टांग जमाए सोफे पर विराजमान इसे देख रहे थे, फिर उठकर इसके पास चले आए। इसने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी, फिर हाथ उठाकर इन्हें हल्का सा हाय भी कहा। किसके साथ थे अब तक? जी, इतनी रात बाद आ रहे हो, यकीनन किसी के साथ तो होगे ना? मैं अपने साथ था। ये अपने साथ तो रहने की उम्र नहीं है। क्या सेलिना के साथ थे? और वह यकलख्त ही बग से उड़ा था। आंखें फैलाकर इन्हें देखा। क्या कहा आपने? सेलिना मजहर, तुम बॉडीगार्ड हो ना इसके? टीवी पर देखा था मैंने। ओह, इसने गहरा सांस लिया। उफ दादा, इतना टीवी क्यों देखते हैं आप? सेलिना के साथ थे या नहीं? नहीं पापा, किसी के साथ नहीं था और मैं इसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ। वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी इसीलिए, बस गलत फहमी है ये। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। दादा के चेहरे पर यकदम ही मायूसी उभरी थी। वो आगे बढ़कर सोफे पे आ बैठा। अच्छा बताओ, करीब से देखने पर कैसी लगती है वो? दादा यकदम ही पुरजोश होकर इसके पीछे आए। आह, सेलिना इनकी फेवरेट थी। वो सेलिना के बहुत बड़े फ़ैन थे। ये बात क्यों भूल गई थी इसे? ठीक थी बस, झूठ मत बोलो। दादा ने कुफ्की से इसे देखा था।
दादा खुदा के लिए रात के इस वक्त मैं सेलिना नामा नहीं सुनना चाहता। वो शदीद बेजार हुआ था, लेकिन दादा को ज़रा जो फ़र्क पड़ जाता। इन्हें बस सेलिना के मुतल्लिक बात करनी थी। सेलिना इन्हें अपने आखिरी ड्रामे से बहुत पसंद थी। इस ड्रामे में इसने एक फर्माबरदार बेटी का क्या कमाल किरदार निभाया था। जब वो स्क्रीन से गायब हुई तो सबसे ज़्यादा उदास सरदार आलम ही थे। अब वो दोबारा नज़र आने लगी थी तो वो पूरे नहीं समा रहे थे। दादा, वो एक खूबसूरत लड़की है, बस सुन लिया आपने, अब मुझे आराम करने दे। वो उठने ही लगा था कि सरदार ने इसे ज़बरदस्ती साथ बिठाया। वो जब्त से आंखें मेज कर बैठा था। क्या तुम मुझे इसका ऑटोग्राफ ला कर दे सकते हो? वो आंखों में बच्चों की सी खुशी लिए इसे पूछ रहे थे। वो इन्हें लम्हे भर को देख कर रह गया था। आप क्या है दादा, 5 ईयर ओल्ड यासिर, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। एक पराई लड़की के लिए आप अपने पोते को जायदाद से आग करने का कह रहे हैं। इसकी आंखों में यकदम ही कुफ्री उभरी थी। सरदार आलम ने चेहरा फेर लिया। वो नाराज़ हो गए थे यकीनन। ओके, ला दूंगा ऑटोग्राफ, इसने हार मानते हुए कहा। तो सरदार यकदम ही इसकी जानिब घूमे, फिर इसे गले लगा लिया। वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गया था। दादी के बाद वो खासे हसास हो गए थे। इन्हें मना करना इसके लिए कठिन होता था। वो एक बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, इंडस्ट्री को इसकी कदर नहीं मालूम। जी बिल्कुल, प्यारी और बेवकूफ़। दादा ने इसे घूरा तो वो कंधे उचकाता उठ खड़ा हुआ। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जी, सब कुछ आपको जो पता है। इन दोनों का ब्लेम गेम चलता रहता था। मैं खाना खाकर आया हूँ, आप सो जाएं जाकर। तुम्हारी माँ आई थी और वो जो आगे पढ़ने लगा था अपनी जगह बर्फ सा हो गया। सरदार इसे ही चेहरा उठाए तक रहे थे। एक दफ़ा मिलकर बात कर लेने से क्या हो जाएगा यासिर? वो माँ है तुम्हारी बेटे, तुम बच्चे हो इसके। मोहब्बत करती है वह तुमसे। ऐसे मत करो, वक्त निकल जाएगा तो बहुत पछताओगे। दादा की नरम सी आवाज़ उभरी तो वह अपनी जगह से हिल नहीं सका। इसके हलक में गिल्टी उभर कर मासूम हुई थी। बेटे माँ को माफ़ कर देते हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। इसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से आगे बढ़ाया। अपने पीछे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से बंद करता वो बेड तक चला आया था। फिर यूं ही आड़ा तिरछा लेट गया, छत को तकता रहा। रात के उसी पहर सेलिना भी बिस्तर पर दराज अपने कमरे की छत को तक रही थी। इन दोनों के नसीब में अच्छी माएँ नहीं आई थी, और खुदगर्ज माओं की औलादों को नींद हमेशा बहुत देर से आया करती थी। इनकी नींद भी आंखों से कोसों दूर थी। रात गए तक इफ्रा का निकाह किया जा चुका था। मेहमान अपने घर को रुखसत हो चुके थे। घर वाले दरमियाने हॉल में रखे सोफों पर आमने सामने विराजमान थे, और माहौल में तनाव बखूबी महसूस किया जा सकता था। मौजूए गुफ्तगू सेलिना थी, और तोपों का रुख इसे यहाँ दावत देने वाले उमर की जानिब था, जिसका मूड सेलिना के नाराज़ होकर जाने पर शदीद ख़राब नज़र आ रहा था। इस लड़की को यहाँ दावत देने का क्या जवाब था उमर? तुम जानते हो, अब हमें इन माँ बेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। पहले ही वो बमुश्किल हमारे घराने से बाहर निकली हैं। शहीर ने अपने सपूत को सख्त निगाहों से देखकर इस्तफसार किया था। जवाबन उमर ने महज सर हिलाया था। वो मेरी कज़न हैं। चाचू ने शादी की थी शगुफ्ता आंटी से। इनके माबेन कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं था। मैं सेलिना को हमेशा अपने घर की दावतों में बुलाता रहूँगा, क्योंकि वो एक इंतहाई अच्छा दिल रखने वाली लड़की है। इसके जवाब पर शहीर की आंखों में मौजूद सख्ती गहरी हो गई थी। इनके साथ ही सिंगल सोफे पर बराजमान मुराद अली ने भी इन्हीं सख्त नज़रों से इसे देखा था। वो दोनों उधेड़ उम्र थे, और इनकी कनपट्टियों में चमकती सफ़ेदी इन्हें मज़ीद करख्त ज़ाहिर करती थी। वो एक बद किरदार लड़की है, बदबख्त। शहीर के फंकारने पर उमर को अपनी कनपट्टियाँ सिलकती हुई महसूस हो रही थी। अच्छा, मुझे इनके बद किरदार होने से कोई मसला नहीं है। जब तक वो एक अच्छा दिल रखेंगी, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त रहेंगी। आपने कभी इनको किसी गलत काम में मुलविस नहीं देखा है। अब्बू, टीवी पर भी वो कभी किसी नाजेबा रोल में नहीं आई। आपने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा है। आप सिर्फ लोगों की बातों पर कान धरे बैठे हैं। हर एक्ट्रेस का बद किरदार होना लाजिम नहीं है। हर एक्ट्रेस का अपने शरीफ घरानों में जलील किया जाना दुरुस्त नहीं है। बोलते बोलते इसका सांस फूल गया था। घर की औरतों ने इसे नापसंदीदा निगाहों से देखा था, जबकि घर के मर्द इसकी बेबाकी पर आतिशपा हो रहे थे। मुझे मजीद कोई बहस नहीं करनी है। वो लड़की अब इस घर की किसी दावत में शरीक नहीं होगी। हमारा बड़े बड़े उलमा कराम के साथ उठना बैठना है। हम हर सवाल का जवाब देने की ना हिम्मत रखते हैं और ना ही जवाब। आइंदा वो मुझे इस घर में नज़र नहीं आए उमर। शहीर की तनबीहा पर भी वो असर लिए बगैर इन्हें देखता रहा था, अफसोस भरी नज़रों से। उलमा कराम तो दस्ते शफ़क़त रखने वाले इंसान होते हैं ना अब्बू। आपको किसी ने हक़ नहीं दिया है सेलिना को जज करने का। वो किस जहन्नुम में रह रही है, आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हें हर गुनाह से बरी कर दें। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कम अज़ कम आप इन्हें इंसान समझे। इंसान फरिश्ते नहीं हुआ करते, इंसान इंसान होते हैं। इनसे गलतियाँ हो सकती हैं और इन्हें मुआफ़ भी किया जा सकता है। आपके पास किसी भी इंसान को जलील करने का कोई हक़ नहीं है अब्बू। इसकी आवाज़ में मौजूद तकलीफ़ महसूस करके लम्हे पर को सब खामोश से हो गए। उमर, अब्बू के साथ ज़बान मत चलाओ, रहमा ने इसे छाड़ कर कहा तो वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कभी कभी इसका अपने घर वालों के साथ दम घुटने लगता था।
آپ نے کبھی ان دونوں کو ان کا حق نہیں دیا۔ چاچو ان کے لیے اپنی آخری وصیت میں خرچ باندھ کر گئے تھے۔ وہ چاچو کی فیملی ہے۔ چاچو نے ان دونوں سے محبت کی تھی۔ کیا آپ کے علماء کرام رشتہ داروں کے حقوق پر کوئی درس نہیں دیا کرتے؟ لمحے بھر کو ہر جانب سناٹا چھا گیا تھا۔ شہیر اور مراد کو سانپ سونگ گیا تھا۔ زبیدہ نے عمر کو کڑوی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اب تم ہمیں اسلام سکھاؤ گے لڑکے؟ مراد کی کرخت آواز پہلی مرتبہ ابھری تھی۔ عمر اسی بے خوفی سے جذباتی ہوا انہیں دیکھتا رہا۔ نہیں تایا ابو، وہ تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رشتہ داروں سے قطعی رحمی کرتے ہیں انہیں جنت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ اس پر چلائے تھے۔ عمر یکدم ہی بہت ہرٹ نظر آنے لگا تھا۔ مجھے کوئی شرکت نہیں کرنی افرا کی شادی میں۔ آپ کو اپنا یہ تکبر سے بھرپور مذہبی رویہ مبارک ہو، جو انسان کو انسان نہ سمجھے۔ ان کے پاس کوئی جواز نہیں خدا سے محبت کرنے کا۔ ان کا خدا سے محبت کا دعویٰ اس روئے زمین پر بولا گیا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ گیا تھا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ تم بیٹھو یہاں، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے جواب تو ساری باتوں کا۔ شہیر اس کے پیچھے تھاڑے، لیکن وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سنہری برقی کمکمے اب تک ٹمٹما رہے تھے، لیکن ان کی روشنی میں پہلی سی چمک نہ رہی تھی۔ ان کی تازگی ماند پڑ گئی تھی اور ہر جانب گھٹن سی پھیل گئی تھی۔ اگلی صبح وہ اندھیرے میں اٹھا تھا۔ آنکھ کھلی تو خود کو رات والے انداز میں ہی بستر پر سویا ہوا پایا۔ وہ آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تھا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ تازہ شاور لینے کے بعد جینز اور بٹن شرٹ پہنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کلائیوں تک برابر کرتا وہ چھوٹے سے لاؤنج میں چلا آیا تھا۔ یک لکڑی پر ننگے پیر چلتے ہوئے اب وہ لاؤنج کی اکبر دیوار پر دیوار گیر آئینے میں دیکھتا گیلے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے چٹک رہا تھا۔ اسی پہر دادا اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر نکل رہے تھے۔ سفید بے داغ سے قمیض شلوار میں ملبوس، سفید بالوں کو سلیقے سے پیچھے جمائے ہوئے اسے دیکھ کر لمحے پر کو ٹھہرے۔ مسجد جا رہے ہو؟ اس نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے رخ ان کی جانب پھیرا۔ آپ چل رہے ہیں؟ ہاں۔ پھر وہ دونوں داخلی دروازہ عبور کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ خاص کے وسیع خطے پر واقع چھوٹا سا سفید محل صبح کی نیلی روشنی میں نیلا محسوس ہو رہا تھا۔ دروازے کے اوپر روشن سنہری کمکموں تلے کھڑے دادا اب دروازہ مقفل کر رہے تھے۔ پھر چابی ہاتھ میں لیے آگے بڑھائے۔ ویٹ، کیا ہم کار میں مسجد نہیں چل رہے؟ اس نے کار کے پاس ٹھہر کر پوچھا تو دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر ان کے پیچھے ہو لیا۔ کیا کبھی آپ میری طرفداری نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ مناسب رفتار میں چلتے ہوئے اس نے کہا تو سردار نے اس کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ دونوں پکی سڑک پر مدھم قدم اٹھاتے نیلی روشنی میں چل رہے تھے۔ فجر کا گہرا اندھیرا چھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سوندھی سی ہوا سے یاسر کے بال ماتھے پر گر کر لہرائے تھے۔ تمہیں انکار کر کے بہت مزہ آتا ہے، اور ایسے ایکٹ مت کرو جیسے تم تو میری ہر بات بنا چوچ رہا کیے مان لیتے ہو۔ جب تک 100 دفعہ اعتراض نہ کر لوں تمہیں سکون نہیں آتا۔ ان کے کہنے پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے وہ سردار کی وجہ سے دھیرے قدموں سے چل رہا تھا۔ جتنا تیز آپ چل رہے ہیں نا، اس حساب سے تو جماعت تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کار لینے کا کہہ رہا تھا میں، لیکن میری یہاں سنتا کون ہے؟ یاسر اعتراض پر اعتراض نہ کرتا۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں تو تم میرے ساتھ کیوں آئے ہو؟ جاؤ، جا کر اپنی کار میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا اب بوڑھے دادا کو کہاں اکیلا چھوڑ سکتا ہوں سڑک پر، ویسے بھی فجر کے اس پہر دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں ہے۔ جیسے روز تو تم میرے ساتھ مسجد جاتے ہو نا۔ دادا بھی کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ اس نے ترچھی آنکھوں سے انہیں دیکھا خفگی سے۔ آپ لڑنا چاہتے ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں لڑنے پر۔ مسجد کا گہرے نیلے رنگ سے مزین گنبد اب ہلکا سا نظر آنے لگا تھا۔ گاؤں کی داخلی حدود میں بہت سے کسانوں کے گھر موجود تھے۔ بہت سے لوگ سڑک پر اب مسجد کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ مان لے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس نے مسکراہٹ دبا کر ان کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ سردار نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اس نے ان کے ایسے آنکھیں گھمانے پر بمشکل ہنسی روکی تھی۔ ابھی اگر تمہاری دادی زندہ ہوتی تو کہتی کہ تم سے کہیں زیادہ وجیہت تو سردار ہیں یاسر۔ ان کے سفید بالوں کے درمیان موجود سرخ و سفید چہرہ کس قدر باوقار لگتا ہے۔ غور سے دیکھنے پر وہ بالکل ٹام کروز جیسے لگتے ہیں۔ دادی کی باتیں دہراتے ہوئے وہ مسکرا رہے تھے، اور اس دفعہ یاسر نے ان کی مبالغہ آرائی پر انہیں نہیں ٹوکا تھا۔ دادی نے کہا تھا کہ وہ ٹام کروز ہیں تو پھر ہیں۔ ٹام کروز نے خودکشی کر لینی ہے۔ مسجد کے دروازے پر قدم رکھتے ہوئے وہ بولا تو سردار نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ دونوں مسجد کے ٹھنڈے سفید ٹائلز پر آگے بڑھ آئے تھے۔ دادا اب گاؤں کے لوگوں سے سلام دعا کرتے ان کا حال احوال دریافت کر رہے تھے۔ یاسر جو کچھ لمحات پہلے تک مسکرا رہا تھا اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ سلام دعا کے علاوہ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ محدود لوگوں کے ساتھ بے تکلف تھا، انہی کے ساتھ ہنستا اور بولتا تھا۔ باقی سب اجنبی تھے اور اسے اجنبیوں کو اپنا بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ فجر بیتے وقت گزر چکا تھا۔ سفید محل کے کچن سے اٹھا پٹک کی آوازیں آ رہی تھی۔ مغربی طرز پر بنے سفید کچن میں ہر شے صاف ستھری تھی۔
दादा दरमियानी गोल टेबल पर बैठे अंग्रेज़ी अखबार पढ़ रहे थे। वो अंग्रेज़ी अदब के काबिल कदर उस्ताद थे। कई सालों तक वो कैम्ब्रिज में पढ़ाते भी रहे थे। दादी के इंतकाल पर इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अब वो सारा दिन घर में किताबें पढ़ा करते थे या फिर मीसम के साथ ज़मीनों पर चले जाते। मीसम इनके घर का मुलाजिम था। खाने से लेकर सफाई तक का हर काम इसके ज़िम्मे था। फ़िलहाल गांव में इसकी अम्मी बीमार थी, इसीलिए वो छुट्टी पर गया हुआ था। यासिर ने नाश्ता बनाकर दरमियानी टेबल पर लगाया। ट्रेनिंग के दौरान वो शहर में अकेला रहा था, इसीलिए इसके खाने पकाने की स्किल्स खासी मुंझ गई थी। आस्तीने कोहनियों तक मोड़े वो अब कप्स में चाय उंडेल रहा था। फिर ट्रे उठाए टेबल पर रखता कुर्सी खींच बैठा। अगर ऑटोग्राफ नहीं लाए तो रात घर मत आना। सरदार ने कनखियों से इसे दिखते हुए ऐलान किया था। हाथ में कांटा थामे वो चौंका। रात वाला वादा याद आया। वो जहनी तौर पर कराहा था। दादा प्लीज़। इन्होंने अखबार बंद करके टेबल पर पटका। यासिर यकदम ही गड़बड़ाया था। घर मत आना, जायदाद तो भूल ही जाओ। इसका चेहरा बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आने लगा था। सरदार अब रगबत से नाश्ता करने लगे थे। अगर इसे बॉडीगार्ड बनकर बचाया है तो ऑटोग्राफ लेने में इतना क्या मसला है तुम्हें? इन्हें इसका एतराज़ वाकई समझ नहीं आया था। यासिर ने गहरा सांस लिया। इसे सेलिना का पिछला रवैया याद था, कैसे वो इसे ज़बरदस्ती अपना ऑटोग्राफ देने पर मिसर थी और इसने किस दुरुस्ती से मना किया था इसे। अब वो जाने किस मुँह से ऑटोग्राफ मांगेगा। आप ड्रामा किंग हैं और सेलिना ड्रामा क्वीन है, और आप जानते हैं कि मुझे ड्रामों से सख्त नफरत है। इसने मुंह में ऑमलेट रखते हुए कहा था। दादा मुस्कुराए। अपने और सेलिना के दरमियान मुशाबत चाहे जैसी भी हो, इन्हें बहुत अजीज थी। हमें भी तुम्हारे जैसे उखड़े हुए खुश्क इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। स्वैच दादा। इसने गहरा सांस लिया और फिर नाश्ता करने लगा। अपनी माँ से इसका चलता हाथ यकलख्त ही रुक गया था। चेहरा बेसाख्ता ही संजीदा हो गया। अपनी माँ से एक बार मिल लेना बेटा, वो कहकर गई थी कि अगर तुम इसके बुलाने पर भी नहीं आए तो इसके पास हज़ारों तरीके हैं तुम्हें अपने पास बुलाने के। बेटा वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। इनकी फिक्रमंद सी आवाज़ पर इसने कांटा आहिस्ता से प्लेट में रख दिया था। संजीदा सी सुरमई आंखें उठाकर इन्हें देखा। दादा हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इस बारे में बात नहीं करेंगे। यासिर मेरी बात भी नहीं मानोगे? इनकी प्यारी सी आंखें, वो जाने क्यों इनकार नहीं कर पा रहा था। मेरे पास इनसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है दादा। वो कुछ भी कहेंगी तो मेरी ज़ुबान से हर्ट होना यकीनी सी बात है। मैं बस इन्हें हर्ट होने से बचा रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या गिला है बेटा? माफ़ कर दो ना। औरतों को इतनी लंबी सजाएं नहीं दिया करते बच्चे। वो नाजुक होती हैं, इनके टूटने का ख़तरा ज़्यादा होता है। मर्द मजबूत होते हैं, इनके टूट जाने पर भी जुड़ने की उम्मीद वासिक होती है। इसके लबों पर तलख सी मुस्कुराहट उभर आई थी। बाज़ दफ़ा टूटे हुए मर्द भी नहीं जुड़ पाते दादा, चाहे उम्मीद कितनी ही गहरी क्यों ना हो। औरतें मर्दों को तोड़ते हुए ये क्यों भूल जाती हैं कि वो मर्द होने से पहले इंसान होते हैं, और इंसान जब टूटते हैं तो जिन्स की कैद से आज़ाद होकर यकसा तकलीफ़ होती है। फ़र्क टूटने में नहीं होता, फ़र्क बस इतना होता है कि औरतें रोकर अपने टूटने का गम मना लेती हैं, और मर्द वो रोने से कबल सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर वो रोए तो जो लोग इन्हें देखकर ज़िंदा हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, और सिर्फ इसीलिए मर्द कभी नहीं रोते। वो नॉर्मल सी आवाज़ में कहकर अपनी जगह से उठ गया था। सरदार ने इसके अधूरे नाश्ते को दुख से देखा। कुछ पल बाद वो अपना यूनिफॉर्म पहने कमरे से बाहर चला आया था। बालों को सलीके से पीछे जमाए, आंखों पर स्याह चश्मा चढ़ाए, लॉन्च पर ठहर कर वो हाथ में खड़ी बांध रहा था। फिर दादा को खुदा हाफिज कहता बाहर निकल आया। सरदार ने बेसाख्ता ही इसके पीछे हिफाजती दुआएं पढ़कर दम किया था। फिर गहरा सांस भरते उठकर स्टडी की जानिब बढ़ गए। वो एजेंसी पहुंचा तो सुबह के वक्त भी खासी गहमा गहमी महसूस हुई। वो दूसरी किसी भी जानिब तवज्जो दिए बगैर अंडरग्राउंड फ्लोर पर चला आया था। अपने कैबिन की जानिब बढ़ते हुए इसने टीममेट्स को सलाम किया और फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया। अभी वो बैठा ही था कि शीशे के पार बनी राहदारी से एक गार्ड अंदर झांका। ये टीम सी का बॉडीगार्ड जमाल था, जो हाल ही में अपॉइंट होकर आया था। यासिर आलम, आपको चीफ हनीफा अपने ऑफिस में तलब कर रहे हैं। इसने सुनकर अस्बात में सर हिलाया और फिर उठकर हनीफा के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। अंदर वो त्योरी चढ़ाए मशकूक नज़रों से इसे चंद लम्हात के लिए देखते रहे। क्या मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था? इसे इनकी खामोशी से कौफत हुई तो पूछ लिया। हनीफा अच्छा वाले अंदाज में कुर्सी पर पीछे हो बैठे, फिर कमरे के दाएं जानिब बने दराज की तरफ इशारा किया। वहाँ से कुछ गायब है मिस्टर आलम। यासिर हिला तक नहीं, आंखें भी नहीं झपकी। वो इसे इसकी रिटाई पर दांत दिए बगैर नहीं रह सके थे। क्या गायब है? स्याह हाई हील्स। ओह, अफसोस हुआ। आपको इतना हसास सामान यूँ खुले आम नहीं रखना चाहिए था। हाथ बांध कर सीधे चेहरे के साथ कहा था इसने। मैं तुम्हें इस स्टेटमेंट पर इस ऑफिस से बेदखल भी कर सकता हूँ। वो भी इतने ही संजीदा थे। एक तो सेलिना की वजह से सब जाने क्यों इसे बेदखल करने पर तुले हुए थे। पहले दादा, अब चीफ। दादा तो चीफ से भी दो हाथ आगे थे। वो तो जायदाद से ही आग कर रहे थे इसे।
مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنی ماما کی پردے پر دیے جانے والی ہیلز میرے دراز میں رکھ کر بھول گئے تھے، اور ان کے یکدم پکڑ لینے پر وہ پہلی دفعہ پوری طرح چونکا تھا۔ ماما کی ہیلز، یہ بات اس نے اپنی ٹیم سے کہی تھی، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ چیف حنیفہ کے آفس کے پار دروازے سے کان لگا کر باتیں سنتے وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان سے گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اندر کھڑے یاسر نے گہرا سانس لیا۔ اب باتیں گھمانے سے کوئی افاقہ نہیں ہونا تھا۔ ہیلز میں نے ہی نکالی تھی۔ بالکل، سی سی ٹی وی میں تم واضح طور پر ہیلز لے کر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ کیا تم فوٹیج حذف کرنا بھول گئے تھے؟ وہ حیران تھے۔ مجھے یاد تھا، ڈیلیٹ کرنا ضروری نہیں لگا۔ کیوں چاہیے تھی ہیلز؟ حنیفہ نے سیدھے ہوتے ہوئے اہم سوال کیا تھا اس سے۔ سیلینا کی ہیلز ٹوٹ گئی تھی۔ تم اسے اپنے جوتے دے سکتے تھے، لیکن پھر میں ہیلز نہیں پہن سکتا تھا۔ دروازے کے پار موجود شیر اور زار کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تھی۔ بہت سے گارڈز بھی اب کے ان کے ساتھ رکنے لگے تھے۔ یاسر اور حنیفہ کی باہمی گفتگو ہمیشہ بہت مزے کی ہوا کرتی تھی۔ تم دوسروں کی پرواہ تو نہیں کرتے، جانے دیتے اسے ننگے پیر، اور اس دفعہ وہ جیسے کچھ بول نہیں سکا تھا۔ انہوں نے بغور اس کا خاموش چہرہ دیکھا تھا۔ خیر، کیا ہیلز اسے پوری آ گئی تھی؟ اگلے ہی پل وہ سرسری سا بولے تو یاسر نے سر ہلایا۔ جی بالکل، ایسے جیسے وہ انہی کے لیے لی گئی تھی۔ اس کے جواب پر جانے کیوں انہوں نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ تھوک نکلا تھا۔ جا سکتے ہو تم، اور آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آفس میں داخلے کی اجازت دیے جانے پر ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ غضب خدا کا، ایک سینئر گارڈ کا رویہ اتنا غیر سینئر۔ وہ بڑبڑا رہے تھے۔ یاسر پلٹ آیا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو وہ تینوں جو کان لگائے ہوئے تھے اندر گرتے گرتے بچے۔ اسے دیکھ کر شیر اور زار زبردستی مسکرائے تھے۔ ساحر نے تو اس کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ تم تینوں کیوں ہو آخر میری زندگی میں؟ اس نے دانت پیس کر کہا، اور انہیں گھوٹتا ہوا باہر چلا آیا۔ وہ تینوں اس کے پیچھے آئے تھے۔ کیا آپ سیلینا سے ملے تھے؟ شیر نے متجسس ہو کر پوچھا تو وہ یکدم پلٹا۔ ایک تو اس کے آس پاس موجود ہر مرد سیلینا کا فین کیوں تھا آخر؟ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے دکھائی۔ اس عورت کی بات مت کرنا میرے سامنے، اس نے گھور کر تنبیہ کی تھی۔ شیر نے ڈر کر زور سے سر ہلایا تھا۔ سیلینا کے متعلق جو بھی بات کرے گا اب جبڑے پر مکہ کھائے گا یقیناً اس سے۔ وہ آفس میں داخل ہوا اور برے موڈ کے ساتھ کرسی کھینچ بیٹھا۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ ابھی اس سے بات کرنے کا مطلب ایک سیریس پنچ کا سامنا کرنے کو دعوت دینا تھا، اور وہ تینوں ہی ایسی دعوت سے گھبرایا کرتے تھے۔